All, all right. Hello, everyone. Rise and shine, neat stars. How are you? So, welcome back to the Oozy series. Hello. Good evening, everyone. So, all ready to start and continue with biotechnology? Hello, everyone. Good evening. Hello, my beautiful students. Hello, Princey. Hi, Tinny. Hi, Dharmendra. Hi, Srinithil. Yo, we have 7,000 subscribers. So, yes, it's time to celebrate. And thank you so much, guys, to support us and keep liking and subscribing to this channel. Share it with your friends if you're liking it. And let's continue with our class. Good evening, everyone. Rise and shine. Oh, yes. Hi, Mehjabeen. Yes, we need to study and concentrate on the positive things. Hello, everyone. So quickly give me the ATPs. Quickly give me ATPs and we'll be starting with the class. Congratulations. Congratulations to all of you. Our family is getting bigger. The family of Neat Stars, guys. We all are Neat Stars and it's something to celebrate. So how do you think we should celebrate this? Good evening. Dharmendra, you missed the class? Did not, never mind. Just watch the recorded class, ठीक है? और जो doubts होंगे, don't miss the tomorrow's class and I'll be taking your doubts tomorrow. ठीक है? All right, all right. संध्या किरण मैम की क्लास एक्चुअली किरण मैम थोड़ा सा ट्रैवल के दौरान शी इज नॉट फीलिंग सो वेल सो अभी सुबह से वो रेस्ट कर रहे थे अभी भी उनको लगा थोड़ी रेस्ट कर ले बट शी विल बी जॉइनिंग ऑल ऑफ यू इन 7 to 8 बैच ऑफ कार 98 सो दोज ऑफ यू विल बी जॉइनिंग इन द कार 98 सीरीज फॉर नीट प्रेपरेशन नीट 2021 प्लीज जॉइन हर. All right. Hello, everyone. Guys, can you hear the voice now? Can you hear the voice now? Yes? अब साउंड आ रही है? Yes, yes, yes. All right. It's time to celebrate. Yes. And let's celebrate it with Kiran ma'am. Let's call her here. Ma'am, 7,000 subscribers हो गए. All the students are super happy. Our family has grown to 7,000 subscribers. What do you want to say? I want to say thank you so much, guys. You all are definitely such a big part in this journey. Yes. And you all are pioneers. The pioneer group. Yeah, the pioneer group, the pioneer students of Neat Stars, ma'am. Yes. है ना हम कितने भी बड़े हो जाएं ये स्टूडेंट्स ये स्टार्स हमारे सबसे पहले और स्पेशल रहने वाले हैं हमेशा के लिए राइट सो गाइस स्टार्ट किया जाए लाइक लेक्चर सो मैम आर यू फीलिंग बेटर नाउ Yes, ma'am. Now I'm feeling definitely स्टूडेंट्स हैव बीन मिसिंग यू सिंस मॉर्निंग दे बीन आस्किंग अबाउट यू किरण मैम कहाँ पे किनू मैम कहाँ पे I felt so bad for missing the lecture. I'm so sorry, guys. I was not keeping well. But abhi, if possible, I'll try to record the lecture today and release it today itself. I'll try my level best. मैम आप कार 98 की क्लास तो ले रहे हो 7 to 8 Definitely. 7 to 8 class is on. All right, you take the chair for a while and please keep track of students' doubts today.
अब स्टूडेंट्स को भी आदत होगी है कि मैम डाउट्स देखेंगे ताकि हमारा कोई भी डाउट मिस ना हो जाए, राइट? चलो तो गाइज कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास के साथ। और गाइज जैसे कि तुमने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स, चलो सो लेट्स मूव ऑन डायरेक्टली टू द क्लोनिंग वेक्टर्स। हियर इट इज। सो देखो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। मैं तुम्हें कुछ बेसिक सी बातें बता चुकी हूं कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर आप फॉरेन जीन इंसर्ट करते हो और जो उसको होस्ट के अंदर लेके जाता है ना? तो क्लोनिंग वेक्टर कौन है? जो हमारे जो फॉरेन डीएनए को, ऐसे लिखेंगे आज, जो फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर लेके जाएगा, होस्ट के अंदर लेके जाएगा। तो देखो चार्टिंग कर करके हमारी इंग्लिश, हमारी हिंदी ऐसे हो चुकी होती है कि हम हिंदी को भी इंग्लिश में लिख रहे हैं, राइट? तो ये जरूर याद रख लेना, जो फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर लेके जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, सो हमारे पास बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था, प्लाज्मिड्स हैं, कॉस्मिड्स हैं, बैक्स हैं, यैक्स हैं। तो ये सारे हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, जो कि मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था। गाइज आई होप द पिछला लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल। मैम किसी को कोई डाउट आ रहा है? नो सो फार? all right guys, so all right, so let's start with the today's lecture then, the brand new thing। और उस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि यस फीचर्स क्या होंगे, जो भी चीज अपने आप को क्लोनिंग वेक्टर की तरह क्लेम करती है। अगर प्लाज्मिड कहता है, कॉस्मिड या बैक या यैक कहता है कि भाई मैं एक वेक्टर हूं, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? क्या क्या किए थे हमने? नंबर 1, उसके पास ओराई होना चाहिए। नंबर 2, उसके पास क्लोनिंग साइट एक होनी चाहिए। और नंबर 3, उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास होने चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स, ये 3 प्रॉपर्टीज जरूर होनी चाहिए हमारे क्लोनिंग वेक्टर के पास। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर को समझने के लिए गाइज हम एक क्लोनिंग वेक्टर की एग्जांपल लेने लगे हैं, एंड दैट क्लोनिंग वेक्टर इज दिस, our artificially synthesized vector known as PBR322। अब इसको समझेंगे, ठीक है? पहले तो इसका नामकरण देख लेते हैं कि इसके मम्मी पापा ने इसका नाम PBR322 क्यों रखा। ठीक है, P इसलिए लगाया क्योंकि P का मतलब है प्लाज्मिड। P के बाद अपना नाम लगा दिया, ठीक है? तो BR उसके मम्मी पापा हैं, यानी कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने कि इसको सिंथेसाइज किया है। नाउ दिस इज एन आर्टिफिशियल वेक्टर। ऐसा प्लाज्मिड अकर नहीं करता है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन ये सिंथेसाइज किया गया है। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल वेक्टर। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल वेक्टर। तो देखो इसके मम्मी पापा कौन है जिन्होंने इसे बनाया? वन इज बोलिवर एंड R stands फॉर रॉड्रिग्स। ठीक है, सो बोलिवर एंड रॉड्रिग्स। और 322 is the number in which the plasmids have been synthesized. Is that clear to all? ये सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? Done? Any doubt so far? Thank you, Thor. You know, Thor is one of my favorites. चलो, so PBR 322 करें आगे। तो देखो इसका नामकरण समझ में आ गया कि बोलिवर रॉड्रिग्स 322, P stands for plasmid. Now this is how the plasmid looks like. अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि प्लाज्मिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो प्लाज्मिड एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है ना? रिमेंबर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, यानी कि क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियोइड के अलावा जो एक्स्ट्रा छोटा सा क्रोमोसोम है, ये वो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा, राइट? सो डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड मींस 2 स्ट्रैंड्स होंगे विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड इट इज सर्कुलर। डबल स्ट्रैंडेड। और 2 स्ट्रैंड्स कैसे कनेक्टेड होते हैं गाइस? हमेशा बाय
हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये है हमारा प्लाज्मिड, ठीक है. दिस इज हाउ प्लाज्मिड लुक्स लाइक. नाउ दिस इज PBr 322. लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. देखो, सबसे पहले हमने कहा कि हमारे वेक्टर के अंदर ओराए होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ओराए होना चाहिए. Now what does ओराए stand for? Origin of replication. ओराए stands for origin of replication. Origin of replication का मतलब वो जगह जहां से रेप्लिकेशन बिगिन होती है. यानी अगर मैंने इसके साथ जहां पे भी ओराए है, मान लो यहाँ पे ओराए है, यहाँ पे ओराए, दिस येलो सेगमेंट, दिस इज ओराए. अगर मैंने इस ओराए के आसपास, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी अब अपना फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया, तो वहां पे जो रेप्लिकेशन है उस फॉरेन DNA की बहुत फास्ट हो जाती है. ठीक है. तो एनी फॉरेन DNA विच इज इंसर्टेड अलोंग विद ओराए इज रेप्लिकेटेड वेरी क्विकली. और कितनी कॉपीज बनाएगा वो भी ये ओराए डिसाइड करेगा. इज दैट क्लियर? सो ओराए की क्या दो प्रॉपर्टीज हैं? देखो, ओराए की दो मेन प्रॉपर्टीज क्या है कि ओराए डिटरमिन करता है कि यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी एंड ये कॉपी नंबर डिसाइड करता है कि कितनी कॉपीज बनेगी. अच्छा, जितनी ज्यादा कॉपीज बनती हैं, ठीक है, उतना हमारा ओराए ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है. तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉपी नंबर. क्या कहेंगे? कॉपी नंबर. नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म्ड पर रेप्लिकेशन. ठीक है. सो दैट इज द ओराए. सो दो चीजें, ओराए इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ये वो जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी एंड इसके साथ जो भी फॉरेन DNA अटैच किया जाता है वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है. कितनी कॉपीज बनाएगा ये भी आपका ओराए डिटरमिन करेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? ये सबको समझ में आया? लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच. दिव्या, वी विल बी डिस्कसिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑल्सो. सारा कुछ होगा, लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट्स की ही डिमांड पे कि मैम लास्ट चैप्टर्स जो है वहां से स्टार्ट करो बायोटेक्नोलॉजी से. सो वी हैव स्टार्टेड विद बायोटेक्नोलॉजी, बट यस, ऑल द चैप्टर्स विल बी डिस्कस्ड. ठीक है. सो कीप लेटिंग मी नो. सीरीज के अलावा जो हमारा फेस्ट होता है, वील बी स्पेशली कीपिंग दोज सेशंस फॉर यू. जो भी आपके ऑन डिमांड टॉपिक्स होंगे उनको हम फेस्ट में लेंगे. सी, YT फेस्ट हर वीकेंड पे होना ही है एंड फेस्टिवल आपके नाम पे होता है, तो हम वो सारे टॉपिक्स सब डिस्कस कर लेंगे. राइट? एनी डाउट्स? ATPs, थैंक यू धर्मेंद्र. कितने लेक्चर में होगा? So we'll take 2 more lectures to complete this chapter. ठीक है. And hopefully within this week हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी खत्म कर देंगे with applications. ठीक है. चलो, all right. So guys, अब देखो, ये हो गई पहली चीज, that is ओराए. सेकंड हमने बात की है क्लोनिंग वेक्टर की. किसकी की है? क्लोनिंग साइट, नॉट वेक्टर, क्लोनिंग साइट की. नाउ क्लोनिंग साइट क्या होती है? क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट वो जगह होती है जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करता है. हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है. रिमेंबर, जैसे ई कोराए 1 किस पे एक्ट करता था? गट्टक पे, GAA-TTC पे. रिमेंबर, तो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जिसे हम 3 नाम देते हैं. You can call it cloning site, you can call it recognition site और restriction site. अब पॉइंट ये है कि प्लाज्मिड के अंदर ऐसा प्लाज्मिड जो वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है. वेक्टर के अंदर हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए. हर एक एंजाइम के लिए सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए. What is the difference between alpha G10 and alpha G2 vector, ma'am? Shriti, there are so many types of vectors. ठीक है. Now this is totally beyond your syllabus, but ये हम थोड़ी देर में डिस्कस कर पाएंगे कि ये क्या है. पहले you need to understand जो मैं बता रही हूँ, because this is in your syllabus. पहले ये समझ लो, then I'll take your doubt. ठीक है. देखो, अब हर एक क्लोनिंग साइट की बात समझो. For each restriction enzyme, for each restriction enzyme, there should be one
there should be one, only one cloning site. There should be only one cloning site. अब इस लाइन का मतलब समझ लो. इस लाइन का मतलब ये है कि अब देखो हमें पता है, यहां पे बता रही हूं, लिसन नाउ लिसन, हमें पता है कि जो ई कोराय 1 है वो किस पे कट करता है, गट्टक पे, है ना, वो किस पे कट करता है, गट्टक पे. मान लो कि यहां पे भी गट्टक है. लिसन नाउ, लिसन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. मान लो कि यहां पे भी गट्टक है, GAATTC, ठीक है, GAATTC, ठीक है, और यहां पे भी गट्टक है. तो अगर आपके प्लाज्मिड के अंदर दो गट्टक होंगे तो ई कोराय जब कट करेगा, नाउ लिसन वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. मान लो ये आपका प्लाज्मिड है, यहां 2 जगह पे गट्टक है, ठीक है, तो ई कोराय 1 कितनी जगह पे कट करेगा, जल्दी से बता दीजिए. Raghav Gupta, you're a dropper and can you take the take this class? Absolutely, you can take this class. है ना? This is biotechnology going on. तो जब तक आपके कार 98 सीरीज में स्टार्ट नहीं होता, yes you can. So देखो, अब ऑफन क्विकी कह रहे हैं 2 बनेंगे, अभिषेक, संयम, एक्सीलेंट, वीरेंद्र, कि 2 जगह पे ई कोराय 1 कट करेगा. Why? Because ई कोराय 1 ने तो गट्टक देखना है, उसको जहां जहां गट्टक दिखेगा वो वहां से कट कर देगा, राइट. बट अब उससे होगा क्या, तो उसने यहां से भी कट कर दिया, यहां से भी कट कर दिया, बट उससे मेरी प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाती है. मैं चाहती थी कि मैं एक जीन यहां से कट करके यहां पे जीन इंसर्ट करूं, बट ई कोराय 1 मैंने जब यूज किया तो उसने गट्टक जहां जहां देखा वहां वहां कट कर दिया. तो अब मेरे लिए प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि मैं फॉरेन जीन कहां इंसर्ट करूंगी. इसलिए गाइस हमेशा ऐसा वेक्टर चूज किया जाता है जिसमें कि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सिंगल क्लोनिंग साइट हो. आर यू गेटिंग दिस? 2 वजह डीएनए अटैच हो जाएगा. यस, ऑफन क्विकी, यू आर वेरी राइट. तो 2 जगह अटैच हो जाएगा. नाउ लेट्स कम टू PBR 322. लेट्स कम हियर. देखो ये है आपका ओराय, यानी जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है. सेकेंडली हमने कहा कि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए. वील बी रीडिंग दिस फ्रॉम NCERT ऑल्सो, वरना हमारी प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाती है. नाउ लिसन, एवरीवन विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड. देखो ये BAM-H1, SAL1, PST1, PVU1, E. coli 1, CLAB1, HIND2, HIND3, PVU1. What are these? Quickly let me know in the comment section. Quickly बता दीजिए. अनुज मिश्रा, 11th lecture time. So car 98 में we have started with 11th का syllabus and the timings are from 10 to 11. ठीक है, biology 2:30 to 3:30 for chemistry and then 7 to 8 for again biology. ठीक है. Yes, this is full for boards exam. Absolutely, Rohit. Restriction enzyme, these are all restriction enzymes. Yes, Gupta. Yes, Raghav Gupta. So these are all restriction enzymes. अब हर एक restriction enzyme की एक specific location होती है कट करने की, right? Now listen. अब आपको ये याद नहीं करना कि ये कौन से पैलिंड्रोम्स पे कट करेगा, ये आपको याद नहीं करना है. लेकिन एक चीज समझो, ये जो BAM-H1 लिखा है, ये इसका एरोहेड ये डिनोट कर रहा है कि ये सिर्फ इसी लोकेशन पे कट करेगा. Can you see BAM-H1 written anywhere else? No. इसका मतलब BAM की जो recognition site है वो सिर्फ यहाँ पे है. इसी तरह से SAL1 कट करेगा तो यहाँ से कट करेगा. Are you getting this? PVU1 कट करेगा तो सिर्फ यहाँ से कट करेगा. PST1 सिर्फ यहाँ से कट करेगा and so on. So guys, it is super important that for every restriction enzyme there should be single cloning site. ठीक है, ताकि मैं जहां से कट करना चाहती हूं सिर्फ वहीं से कट हो, कहीं और से कट ना हो जाए और प्रोसेस कॉम्प्लिकेट ना हो जाए. Is that clear? Hi Akanksha, hi Amber, which is called palindrome site. Yes, Aman, we'll be starting with the plus course very soon. And those of you who are interested in the plus subscription,
You can join my class. You can use this code TC Live to get 10% off on the subscription, right? चलिए बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट इन मार्च. बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ गई फॉर दैट पर्सनलाइज्ड टीचिंग, राइट? We will be starting that very soon. But otherwise, guys, everything is there on YouTube as well. So ऐसा मत समझना कि if you cannot afford तो क्या करें, है ना, हम सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते. तो गाइज बस फुल ऑन मस्ती से यहाँ पे पढ़ो, राइट? और बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है. थैंक यू सो मच. बाकियों की ATPs कहाँ पे है? कहाँ पे ATPs? जैसे ही दिखता है ना कि मैम की आवाज थोड़ी कम हो रही है तो ATPs भेज दिया करो. चलो नाउ अंडरस्टैंड. देखो अभी तक हमने 2 पॉइंट्स किए हैं. वी आर डन विद और वी आर डन विद क्लोनिंग साइट्स कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनकी क्लोनिंग साइट्स कितनी होनी चाहिए? 1. कितनी होनी चाहिए? 1 क्लोनिंग साइट. क्लियर? नाउ थर्ड is selectable markers. Now understand. Selectable markers क्या होते हैं? देखो सेलेक्टेबल मार्कर्स पे आने से पहले चलो सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ और फिर हम अपनी कहानी शुरू करेंगे. देखो सेलेक्टेबल मार्कर्स गाइस वो जीन्स होते हैं जिनके बेस पे तुम ये डिफरेंशिएट कर सकते हो कि होस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन की गई है या नहीं की गई. मैं अपनी बात दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? एंड देन वील अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. देखो सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? जीन्स विच हेल्प टू डिफरेंशिएट between ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि जिसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट किया गया है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं किया गया. ट्रांसफॉर्म का मतलब ही है चेंज. तो जिसके अंदर चेंज लाया गया, जो बदल गया, वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट. जो नहीं बदला वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, राइट? तो अब जस्ट जीन के बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई ये बैक्टीरिया या ये होस्ट सेल हमारा बदल गया है या दूसरा हमारा नहीं बदला. तो जिस जीन के बेस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर. ये डाउनवर्ड थम्स क्यों आ रहे हैं भाई राना? अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो लेट मी नो योर डाउट्स, ठीक है? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सो मच कोकी फॉर द ATPs. चलो कंटिन्यू करें. ओके नाउ सी ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. डन. नाउ लिसन, यहां पे वापस आ रहे हैं PBR 322 पे. कहानी ध्यान से समझना. यहां पे तुम्हें पिंक कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. दीज पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर्स, दीज रीजन्स, ये जितना भी मैं मार्क कर रही हूँ जो पिंक में है या जो रेड में है, राइट? और इसी तरह से ये रीजन. बहुत ध्यान से समझना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है, ठीक है? लेकिन ट्रिकी होने की वजह से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और हमसे होते नहीं है, लेकिन आज के बाद तुम्हें बहुत सिंपल लगेगा. नाउ लिसन. तो गाइज ये जो रीजन है, देखो ये पूरा क्या है? प्लाज्मिड, राइट? इसके अंदर क्या है? बहुत सारे जीन्स. अब इस प्लाज्मिड के अंदर गाइज 2 स्पेशल जीन्स हैं. 2 बहुत ही स्पेशल जीन्स हैं. देखो एक है टेटार, एक है AMPR. नाउ व्हाट डज इट मीन? टेटार का मतलब है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. टेटार का मतलब ऐसा जीन जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एंड AMPR का मतलब जो कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. गाइस टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन आर द 2 एंटीबायोटिक्स. आई होप एंटीबायोटिक्स सबको पता है. एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो माइक्रोब को मारते हैं, यानी एक माइक्रोब प्रोड्यूस करेगा तो दूसरे माइक्रोब को मार देगा, ठीक है? तो ये हैं हमारे एंटीबायोटिक्स. ऑल राइट. देखो टेट्रासाइक्लिन, एम्पीसिलिन आर द एंटीबायोटिक्स, और ये टेटार और AMPR, these are the genes.
जिसके अंदर, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली, जिनके अंदर ये जीन्स होंगे, जिस बैक्टीरिया के अंदर ऐसा प्लाज्मिड है और जिस प्लाज्मिड के अंदर ये जीन्स प्रेजेंट है, टेटार एंड एएमपीआर, उनके पास इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब ऐसे बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम डालते जाओ उसके ऊपर एम्पिसिलिन, तुम डालते जाओ उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन, वो नहीं मरेगा। सो इसका मतलब बाय चांस अगर हमारे अंदर किसी बैक्टीरिया के, हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर किया और उस बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस थी, तो तुम बीमार तो हो रहे हो उस बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स लेने से तुम ठीक नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि तुम्हारे ठीक होने के लिए बैक्टीरिया का मरना जरूरी है, लेकिन बैक्टीरिया के पास क्या है? टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन से। सो बैक्टीरिया क्या करेगा? इट विल सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। नाउ दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? मैम किसी को कोई डाउट्स आ रहे हैं? एनीवन? मैम आ रहे हैं, लग रहा है कोई डाउट आ रहा है। हाँ जी बताओ। डाउट नहीं है, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग कि उनको, एक बच्चे को गैस्ट्रोलेशन में डाउट है। तो बेटा गैस्ट्रोलेशन का जो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, दैट्स व्हाट वी वर आस्किंग यू गाइस कि आप लोग क्या चाहते हो हम इस जब हमारा वाईटी फेस्ट होगा उसमें आपका एनिमल किंगडम कंप्लीट करें, नहीं तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। तो इट इज you have to decide this. अगर 50-50 रहेगा तो we'll be dealing with both. So gastrulation will be covered. उसके अलावा many students are asking कि हमें notes कहाँ से मिलेंगे? तो बेटा notes lecture जब खत्म हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद आपको PDF मिल जाया करेगा। And so gastrulation का बहुत बार बच्चा डाउट पूछ रहा था मैम। I think that's it. That's it. तो मैम आई थिंक हम फेस्ट पे इनकी डिमांड के हिसाब से ये चैप्टर्स भी शुरू कर सकते हैं, है ना? Yes. तो जैसे जैसे गाइस डिमांड्स आती जाएंगी आपके फेस्ट पे वो सारी पूरी की जाएंगी, है ना? Definitely मैम, बिल्कुल। एनीथिंग एल्स? No, that's it. ओके कूल, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया? वंस अगेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं डाउट में देख रही थी जिसकी वजह से एक्चुअली मैं आई थी एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट। सो गाइस, टेलीग्राम चैनल हैज बीन क्रिएटेड। एट द एंड ऑफ द लेक्चर टीना मैम विल बी शेयरिंग द लिंक विद यू, प्लीज ज्वाइन इन। बच्चे पूछ रहे हैं मैम आंसर लिख रहे हैं तो आंसर फिर कहाँ पे शेयर करें? बिकॉज इन आवर बोर्ड सीरीज, इन ऊजी सीरीज वी आर गिविंग यू क्वेश्चन टू राइट। सो बेटा आंसर लिखिए और टेलीग्राम ग्रुप का अभी मैम आपको बता देंगे, उस पर ज्वाइन करो और अपने आंसर लिख के भेजना स्टार्ट कर दो जल्दी से। ओके डन। ऑल राइट, सो लेट्स कम बैक टू PBR 322 गाइज। ठीक है, तो देखो ये PBR 322 ऐसा मजेदार प्लाज्मिड है जिसके पास टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स है, यानी कि इनको एम्पिसिलिन से, टेट्रासाइक्लिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो लेकिन इन जीन्स को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, मैं ऐसे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ जिनके अंदर ये प्लाज्मिड है या जिनके पास ये जीन्स हैं। अब इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं अगर टेट्रासाइक्लिन जीन, यहां से लेके यहां तक एक जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर, नाउ लिसन, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे गाइस, यहाँ पे मैं एक फॉरेन जीन इंसर्ट करना कर दूं, ये क्या है? फॉरेन जीन। अगर मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर दूं तो क्या होगा? तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। समझ में आया? अगर मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर दूं तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के जीन के अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट कर दूं तो भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो जिस भी जीन के अंदर, चाहे मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करूंगी तो वो जीन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा
उसकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये सबको समझ में आया? राइट? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? मैम बच्चों को ये समझ में आया? हाँ जी मैम। आकाश नहीं है। नहीं आया आकाश? चलो फिर दोबारा समझते हैं, क्योंकि समझे बगैर आज हमने ये क्लास खत्म नहीं करनी है। आज क्लास ही क्लोनिंग वेक्टर की है, ठीक है? नाउ लिसन, देखो सिंपल सी बात, एक बार दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स रब दिस एंड नाउ लिसन अगेन। देखो या अगर ये जीन है टेट्रासाइक्लिन जीन, रेजिस्टेंस जीन, तो अगर तुम उस बैक्टीरिया के ऊपर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालोगे तो वो नहीं मरेगा, ठीक है? इसी तरह से अगर उसके पास ये वाला जीन है और तुमने उसके ऊपर एम्पिसिलिन डाल दिया तो भी वो नहीं मरेगा। समझ में आया इतना? ठीक है। नाउ व्हाट डिड आई डू? मैंने इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के जीन के अंदर एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया है। मैंने इसके अंदर एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया। जब मैं जीन टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर, यानी जीन के अंदर जीन डाल दूंगी तो उसकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। यानी अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गई है, तो अब मैंने अगर उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन डाला तो वो बैक्टीरिया मरने वाला है। अब वो बैक्टीरिया मरने वाला है। Is that clear? It will not express. Yes, Nagrali, bacteria will die. Right? Now tetracycline is going to attack it. ठीक है? इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे भी एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर दूं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर दूं तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो पहले जिन बैक्टीरिया के पास या जिन बैक्टीरिया को ना एम्पिसिलिन से असर हो रहा था ना टेट्रासाइक्लिन से वो मर रहे थे, फॉरेन जीन्स इंसर्ट होने के बाद अब टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन दोनों से वो मर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दे विल बी किल्ड। क्लियर? समझ में आया आकाश? ठीक है, चलो नाउ लिसन। अब ये फॉरेन जीन इंसर्ट करने के लिए मुझे ये जीन को कट करना पड़ेगा, है ना? फॉरेन जीन को इंसर्ट करने के लिए मुझे इस जीन को कट करना पड़ेगा। तो देखो, कट करने के लिए हम दो जगह से कट कर सकते हैं। पहले ये बताओ, कट करने के लिए, डीएनए को कट करने के लिए हम कौन से एंजाइम्स यूज करते हैं? जल्दी से बता दीजिए। कट करने के लिए हम कौन से एंजाइम्स यूज करते हैं? क्विकली लेट मी नो, क्विकली। एंजाइम्स को कट कर, डीएनए को कट करने के लिए हम कौन से एंजाइम्स यूज करते हैं? राघव गुप्ता इज सेइंग आरई, वैशाली सेइंग एंडोन्यूक्लियेजेस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एक्सीलेंट, है ना? तो यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नजर आ रहे हैं? जल्दी से बताओ, आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे पीपीआर 322 के अंदर? बिल्कुल आ रहे होंगे, है ना? सो आई एम श्योर आपको यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नजर आ रहे हैं। BAM-H1, SAL1, PVU1, PST1, isn't it? These are the restriction enzymes. These are the restriction enzymes. ये क्या हो रहा है? Okay, these are the restriction enzymes. Clear? अब देखो, टेट्रासाइक्लिन जीन को, listen now very carefully, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को मैं दो जगह से कट कर सकती हूं, ठीक है? क्योंकि मेरे पास दो तरह के एंडोन्यूक्लियसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दोनों अलग अलग जगह पे कट करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन दो जगह से कट हो सकते हैं। कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से एवरीवन कॉन्सेंट्रेट नाउ, टेट्रासाइक्लिन जीन को कट करने के लिए मैं कौन से दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज कर सकती हूं? नाउ दिस इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। रौनक, क्लोनिंग साइट और ओराई पे क्या डिफरेंस है उस पे अभी आ रहे हैं हम। पहले आप ये बताइए, यस प्लीज, कैन यू टेल मी? ओके, सो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। वेरी राइट। तो रैंडम पर्सन इज सेइंग BAM-H1, ठीक है? राघव गुप्ता इज सेइंग BAM-H1 एंड SAL1. श्रेयांश, BAM एंड SAL. वेरी राइट. प्रिंस, कुणाल, राइट, ठीक है? सैम सिंचन, कूल। सो देखो, अब टेट्रासाइक्लिन जीन को कट करने के लिए मैं दो एंजाइम्स यूज कर सकती हूँ। वन इज BAM-H1 एंड SAL1, ठीक है?
तो दोनों में से कोई भी एक एंजाइम मैं यूज करके उसको कट करूंगी, उसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करूंगी। फॉरेन जीन इंसर्ट होते ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। नाउ लिसन, व्हाट एम आई गोइंग टू राइट हियर? लिसन लिसन लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, BAMH1 and SAL1 used to cut tetracycline resistance gene, ठीक है, किसको ये कट करेगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को कट कर देगा टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए, ठीक है, टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए। इज दैट क्लियर? और जब फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। नो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, यानी ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर जैसे ही तुमने टेट्रासाइक्लिन डाला वो खल्लास। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इसी तरह से नाउ लेट मी नो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को कट करने के लिए मैं कौन से एंजाइम्स यूज कर सकती हूँ? क्विकली, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को कट करने के लिए कौन से एंजाइम्स यूज कर सकती हूँ? मैम बच्चों ने आंसर बताया, एम्पिसिलिन। क्लियर है? वेरी राइट। नाउ एम्पिसिलिन, यस, प्रिंस लोहिया सेज PVU1 एंड PST1, एक्सीलेंट। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए गाइस मैं यूज कर सकती हूँ PVU1 एंड PST1। एंड अगेन क्या होगा? अब PVU1 एंड PST1 यूज करूंगी तो टेट्रासाइक्लिन जीन कट होगा। यहां कट करेंगे तो ये फॉरेन जीन इंसर्ट होगा, और जैसे ही फॉरेन जीन इंसर्ट हो जाता है रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, यानी कि अब उस बैक्टीरिया को उस एंटीबायोटिक से फर्क पड़ेगा। इज दैट क्लियर? जल्दी से मुझे एक आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना। यस प्लीज। नाउ क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड लिसन टू द क्वेश्चन। लिसन, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर ये PBr322 है और मैंने उसमें BAMH1 यूज किया है, तो हाउ कैन वी किल द बैक्टीरिया? Which antibiotic will be used to kill the bacteria? Is it ampicillin or tetracycline? Quickly let me know. Yes, please. Yes. बबली अभी टाइम बताते हैं। पहले आंसर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर हम बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं जिसके अंदर ऐसा प्लाज्मिड है, ठीक है, तो उसको हम किस एंटीबायोटिक से मारेंगे? अगर मैंने BAMH1 यूज किया है तो Anushka has said answer is tetracycline. Excellent Anushka. ठीक है, एंड तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को आंसर क्लियर है। एक्सीलेंट, ऑल ऑफ यू, एक्सीलेंट। आज सुबह भी लेक्चर में बहुत सारे 2 क्वेश्चंस पे बच्चों ने अपने आप को चॉकलेट दी थी, तो तुम भी आज अपने आप के लिए बहुत बड़ी सी चॉकलेट ले लोगे। ठीक है गाइस, आज 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए तो चॉकलेट तो बनती है, एंड स्पेशली तुमने ये आंसर दे दिया। ये टॉपिक जो है ना, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, बट आई एम श्योर कि अब तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? डन? ओके, फैंटास्टिक। चलिए, तो इसी तरह से अगर मैं PVU1 यूज कर लेती हूँ तो बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूज करूंगी? एम्पिसिलिन, क्योंकि PVU1 यूज करते ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड गाइस। चलो मैम, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अब इसका मतलब हम क्या कर रहे थे? सिलेक्टेबल मार्कर्स। नाउ लिसन टू द, लेट्स कम बैक टू सिलेक्टेबल मार्कर्स वंस अगेन। देखो, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या था? सिलेक्टेबल मार्कर्स वो जीन्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो जिन जीन्स के बेस पे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि किसमें चेंज आया है और किसमें चेंज नहीं आया, वो क्या है? हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो गाइस, क्या
इनके अंदर चेंज लाने के बाद, इनके अंदर जब मैंने फॉरेन जीन इंसर्ट किया तो मैं क्या डिस्टिंग्विश कर सकती हूं कि ये ट्रांसफॉर्मेंट था या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था? तो जिसके अंदर देखो, समझो, जिसके अंदर एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल है, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। आर यू गेटिंग इट? ओरिजिनली हमारा प्लाज्मिड जो था उसके अंदर, नाउ लिसन वंस अगेन, यस हियर, लेट्स कम बैक हियर। देखो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस लिखूंगी। देखो ये ओरिजिनल हमारा PBr 322 है, ठीक है। तो जिसके अंदर देखो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यानी जो नहीं बदला, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है? जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और AMPR भी है, राइट? और अगर मैं एक फॉरेन जीन इंसर्ट करके एम्पिसिलिन और या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म कर देती हूं तो वो क्या बन जाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये जो दो जीन्स हैं गाइस, ये जो दो जीन्स हैं ये हमें हेल्प कर रहे हैं टू डिस्टिंग्विश, ये डिफरेंशिएट करने में कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ना बच्चों को ये चीज समझ में आई? हाँ जी, सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्विकली डन। चलो आगे चलते हैं। अब गाइस देखो, सो दिस इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक। नाउ लेट्स रीड NCERT once and we'll see. Origin of replication. This is a sequence from where the replication starts. ठीक है, जहां से replication start होती है, and any piece of DNA linked to the sequence can be made to replicate. यहां से replication start होगी, point number 1, और कोई भी अगर DNA तुम इसके साथ जोड़ देते हो तो वो बहुत जल्दी replicate करेगा within the host cell, and also it controls the copy number. तो this is copy number. इसका तीसरा काम कि कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, एंड आई टोल्ड यू कॉपी नंबर होता है कि कितनी कॉपीज जनरेट होंगी, ठीक है। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर। तो अगर हमें ज्यादा कॉपीज चाहिए तो हमें वैसा अपना वेक्टर ढूंढना होगा जिसका कॉपी नंबर ज्यादा होगा। आकाश, रेट्रोवायरस पे अभी हम आएंगे, वो भी वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ठीक है। रेट्रोवायरस RNA कंटेनिंग वायरसेस होते, तो अभी हम करेंगे उसके बारे। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्टेबल मार्कर। देखो अब सिलेक्टेबल मार्कर मैंने बता दिया, इन एडिशन टू ओराई के अलावा और क्या होना चाहिए वेक्टर के अंदर? सिलेक्टेबल मार्कर्स। और सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है? जिनके बेस पे तुम भेदभाव कर पाते हो कि किस में चेंज आया, किस में नहीं आया, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, which helps to identify and eliminate non-transformants and selectively permeating the growth of transformants. अब ये selectively permeating the growth क्या होती है ये अभी समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले दिन ही समझ चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलना, अपने होस्ट को बदलना। तो जिस भी होस्ट के अंदर गाइस फॉरेन जीन होता है वो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेंट होता है। और होस्ट के अंदर फॉरेन जीन को इंसर्ट करने की प्रक्रिया, उसकी प्रोसेस, उसके प्रोसीजर को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट्स अ प्रोसीजर थ्रू विच पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। द जीन्स एनकोडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन। देखो एंटीबायोटिक्स कौन से हैं? एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होती। बट गाइस आजकल क्योंकि हम बहुत ही बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होनी शुरू हो गई है। ऐसी ट्यूबरकुलोसिस की फॉर्म्स आ गई हैं जिनको कि पुराने एंटीबायोटिक्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? सो इसलिए एंटीबायोटिक कोर्स अगर शुरू करते हो तो उसको बहुत ही केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली पूरा भी करो, वरना एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। नाउ सी, normally genes encoding the resistance to such antibiotics are considered the useful selectable markers for E. coli.
नॉर्मली नहीं होता, लेकिन ये जो हमने प्लाज्मिड किया है, नाउ दिस प्लाज्मिड इज आर्टिफिशियल. इज दैट क्लियर? दिस इज आर्टिफिशियल. Clear? Now the normal E. coli do not carry resistance against any of these antibiotics. That's what I have told you. और एक चीज क्लियर कि PBR 322 guys एक आर्टिफिशियल बैक्टीरिया है. इज दैट क्लियर? हाय स्मृति. चलो नेक्स्ट आता है क्लोनिंग साइट्स. क्लोनिंग साइट्स. In order to link the alien DNA, the vector needs to have देखो alien DNA इंसर्ट करने के लिए, एलियन डीएनए लिंक करने के लिए वेक्टर के पास, वेक्टर शुड हैव प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट. रिकॉग्निशन साइट और क्लोनिंग साइट इज वन एंड द सेम. उसके पास सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए ताकि हम उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह से ही कट कर सके. फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन, अगर एक जगह से ज्यादा क्लोनिंग साइट्स होंगी तो क्या होगा? हमने अभी देखा था इकोराई 1, अगर 2 गट्टक प्रेजेंट थे तो क्या हुआ था? उसने दोनों जगह से कट कर दिया था. तो व्हाट विल हैपन? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट्स व्हिच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग. इज दैट क्लियर टू ऑल मैम? यहां तक बच्चों को क्लियर है? इस चैप्टर के बाद व्हाट इज ब्लू व्हाइट सिलेक्शन? रोहित, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन पे अभी हम आएंगे, वो भी इसी तरह से है कुछ, है ना. नाउ लिसन गाइस, देखो अभी तक हमने क्या किया है PBR 322 में. नाउ लिसन हियर, जब हम उसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं, हम उसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म कर रहे हैं या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म कर रहे हैं. तो अगर फॉरेन जीन इंसर्ट किया जाता है तो बेसिकली क्या की जा रही है? ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही है ना. क्या किया जा रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही है. नाउ लिसन, ट्रांसफॉर्मेशन तो की जा रही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में करने का तरीका क्या ढूंढ रहे हैं हम? यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका क्या है कि उसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट कर दो. ट्रांसफॉर्मेशन इज डन बाय इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए, by inserting foreign gene, right? अब जब फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन, तो उससे हो क्या रहा है? उससे हमारा पुराना जीन इनएक्टिव हो रहा है ना. तो ट्रांसफॉर्मेशन इज डन बाय इंसर्टिंग द फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन. तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को इनएक्टिव करने के लिए हमने क्या किया? फॉरेन जीन इंसर्ट किया और वो क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया. नाउ गाइस, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ये कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इनएक्टिवेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? फॉरेन जीन इंसर्ट कर रहे हैं. मैम बच्चों को कोई डाउट आ रहा है अभी तक? कोई डाउट नहीं है? चलो, सो गाइस दिस मच इज क्लियर टू यू. ठीक है, चलो अब ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, अब इसको समझने के लिए हम देखो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखो सबसे पहला हमने मेथड क्या यूज कर लिया है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ठीक है. अब नाउ लिसन, अब बैक H1 लिसन. यहाँ पे आई नीड एन एक्स्ट्रा स्लाइड. ओके, आई हैव इट ऑलरेडी. ओके, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यानी इनएक्टिवेटिंग. ओके सॉरी, ये क्या आ रहा है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब inactivating the gene by inserting another gene. एक जीन को इनएक्टिवेट करने के लिए दूसरा जीन उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, यानी इंसर्ट करके इनएक्टिवेट करना इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इंसर्टिंग अनदर जीन. इज दैट क्लियर? ठीक है. नाउ लिसन. अब सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूं, इसलिए ध्यान से एक एक स्टेप देखते जाना. ठीक है. नाउ लिसन गाइस, मेरे पास एक
पेट्री डिश है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कल्चर बनाया, सो यहाँ पे एक मैंने कल्चर बनाया बैक्टीरिया का। चलो, तो मान लो ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, दिस इज बैक्टीरियल कॉलोनी, ठीक है। नाउ लिसन, समझना, ठीक है। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है और एम्पी रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है। नाउ आंसर इन यस और नो। ऐसे जीन, ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसा बैक्टीरिया क्या टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन से मरेगा? Will it die in the presence of tetracycline or ampicillin? Quickly let me know. Will it die in the presence? Quickly let me know, guys. Will this bacteria die in the presence of tetracycline or ampicillin? No. Raghav Gupta says no, right? So it will not die क्योंकि उसके पास ये दोनों genes हैं, right? Now listen. Now listen. अब मैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, दैट हाउ डू वी, अब हम पढ़ क्या रहे हैं कि हम कैसे सेपरेट करते हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो वी आर गोइंग टू लर्न दिस हियर, ठीक है। सो व्हाट इज द टॉपिक? हाउ डू वी सेपरेट, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये सीखने जा रहे हैं। And non-transformant. This is the question. This is the question. ठीक है ना। सी, सबसे पहले हमने एक कॉलोनी ले ली जिसके अंदर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, यानी उनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है। नाउ लिसन, देखो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एंडोन्यूक्लियस यूज किया जिसका नाम है BAM-H1। क्या यूज किया है? BAM-H1। Guys, let me know in the chat. Quickly let me know in the chat. BAM-H1 यूज करते ही कौन सी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी? क्विकली। अर्पिता भी आरओपी पे भी आएंगे, अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं। अभी हम सिलेक्टेबल मार्कर्स को ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, राइट? यस प्रिंस। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही हमने ये यूज किया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गई, राइट? नाउ व्हाट विल आई डू? आई विल grow this colony on ampicillin containing medium। देखो, जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिस भी जीन में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसके उलट दूसरा एंटीबायोटिक हम पहले डालते हैं, ठीक है। दूसरा एंटीबायोटिक हम पहले डालते हैं क्योंकि हमने एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस खत्म नहीं की है, तो वी जस्ट वांट टू इंश्योर कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है ना। सो हम उसको पहले, इस कॉलोनी को किस पे ग्रो करेंगे? कंटेनिंग एम्पिसिलिन, कंटेनिंग मीडियम, जिसके अंदर एम्पिसिलिन होगी। नाउ लेट मी नो, अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म की है तो एम्पिसिलिन डालने पे बैक्टीरिया का क्या होगा? विल इट डाई और इट विल सर्वाइव? क्विकली, व्हाट विल हैपन टू दिस कॉलोनी if it is grown on the ampicillin containing medium? Will the bacteria die or it will survive? Quickly, क्या होगा? What will happen? The bacteria will grow, right? The bacteria will survive, right? क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म की है भाई, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है उसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर जब हमने BAM-H1 यूज किया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हुई थी गाइस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाज स्टिल ऑन, राइट? ठीक है। अब तो एम्पिसिलिन की मीडियम में ग्रो किया तो बैक्टीरिया विल ऑटोमेटिकली सर्वाइव, इट विल ऑब्वियसली सर्वाइव। नाउ व्हाट विल आई डू? नाउ ये जो बैक्टीरिया सर्वाइव किए हैं, अब इनको मैं ग्रो करूंगी, ग्रोन ऑन tetracycline containing medium. What will happen, guys? It will be grown on tetracycline
कंटेनिंग मीडियम, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, विल इट डाई और इट विल सर्वाइव? टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे अगर मैं ग्रो करती हूँ, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, जल्दी से बताइए। अब अगर मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे, सॉरी मीडियम पे ग्रो करती हूँ तो व्हाट विल हैपन? Anushka, often quirky, they are saying it will die, right? So it will die. Yes, now bacteria will die. ठीक है? तो guys, दो चीजें हो सकती हैं. Majority bacteria will die. ठीक है? कुछ हो सकता है बैक्टीरिया सरवाइव भी कर गए हो. ठीक है? ठीक है? अब मुझे ये बता दो कि जो बैक्टीरिया सरवाइव किए हैं, जो बैक्टीरिया सरवाइव किए हैं वो ट्रांसफॉर्मेंट हैं या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? मैं इसके बारे पूछ रही हूं. जो बैक्टीरिया सरवाइव किए हैं वो ट्रांसफॉर्मेंट हैं या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? क्विकली लेट मी नो इन द चैट, क्विकली. यस गाइस, सो जो बैक्टीरिया सरवाइव किए हैं वो क्या है? वो ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? Yes, Anushka says non-transformant, above. Very good friends. तो जो बैक्टीरिया सरवाइव किए गाइस वो क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. ठीक है? क्योंकि देखो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. नाउ लिसन, ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे, जो यहाँ तक पहुंचे हैं, बचे हुए पहुंचे हैं. ठीक है? ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो सरवाइव किए, ये कौन से थे? इनके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इनके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, राइट? अब अगर मैंने इनको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कंटेनिंग मीडियम के ऊपर ग्रो किया और वो अभी भी बच गए हैं, तो इसका मतलब उनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है. तो ये किसके जैसा है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जैसा. अब जो मर गए हैं, दोज हु कुड नॉट सर्वाइव, दीज आर ट्रांसफॉर्मेंट्स, दीज आर ट्रांसफॉर्मेंट्स. सो दोज हु डाइड or those who died, they did not have tetracycline resistance. Is this clear to all? Is this clear? Right? Right. Is this clear to all? तो guys, अब एक next और last question जल्दी से बता दोगे कि यही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए मैं BAM-H1 के अलावा और कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर सकती थी? BAM के अलावा और मैं क्या यूज कर सकती थी? यस प्लीज. किस सिचुएशन में बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता है? अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना? नाउ लेट मी नो, BAM-H1 के अलावा गाइस और कौन सा? साल 1 राघव, वेरी राइट. तो साल 1 भी यूज किया जा सकता है, राइट. ओके. अब गाइज अगर मैं यहाँ पे इसको ऑल्टर करना चाहती हूँ, लाइक सिचुएशन चेंज करना चाहती हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर, नाउ लिसन, इफ आई वांट दिस सिचुएशन हियर कि उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रहे लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ना रहे, तो मैं कौन से एंजाइम्स यूज करूंगी? Let me know in the comment section quickly. Yes, please. Quickly let me know कि अगर मुझे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चाहिए और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, तो मैं कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करूंगी? वेरी राइट अंजिक, इट इज PST1 एंड PVU1. तो कौन सी रहेगी? PST1 एंड PVU1. तो मैं इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकती हूँ. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स गो बैक टू NCERT. अब तुम्हें ये लाइंस समझ में आएंगी. लिसन, इट सेज द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA, लाइगेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग, ऑफ एलियन DNA इज कैरिड आउट बाय द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. कि अगर मुझे फॉरेन जीन इंसर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? किसी भी एक रिस्ट्रिक्शन साइट को यूज करते हुए इन एनी वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स. नाउ लिसन,
फॉर एग्जाम्पल, ये चीज समझ आने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जरा ध्यान से देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए at BAM H1 site of tetracycline in the vector PBR322. BAM H1 यूज करके मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर सकती हूँ, तो उससे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सबको समझ में आया है गाइस? ये सबको समझ में आया? मैम आई थिंक क्लास का टाइम हो गया है ना. तो गाइस क्लोनिंग वेक्टर्स इज डन. ठीक है, तो गाइज आपके सिलेबस में यही है. अब कौन से हम वेक्टर्स यूज करते हैं, देखो एनिमल्स के लिए हम जनरली यूज करते हैं रेट्रोवायरस. ठीक है, प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं टीआई प्लाज्मिड कंटेनिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस टीआई प्लाज्मिड. क्यों यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे डिटेल्स जब हम करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एंड नाउ आई कैन सी किरण मैम. यस मैम, बताइए. So there are few things guys which we need to tell you. कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि प्लांट किंगडम की क्लास कब होगी. तो प्लांट किंगडम की आपकी क्लास जो कि कार 98 का बैच है, दैट इज फॉर ड्रॉपर्स, और नॉट जस्ट फॉर ड्रॉपर्स, फॉर +2 स्टूडेंट्स, फॉर 11 स्टूडेंट्स, 9, 10, जिसको भी प्लांट किंगडम पढ़ना है बेटा. 7 बजे क्लास होने वाली है स्टार्ट. एल्गी का भी कुछ पोर्शन बचा हुआ है, सो वहां से स्टार्ट करेंगे. और प्लान ये है कि आज ब्रायोफाइट्स खत्म करके उठेंगे, चाहे जितनी देर लगे आज. ठीक है, सो आज ब्रायोफाइट्स खत्म करना ही करना है हम लोगों को, क्योंकि इस हफ्ते कम से कम हमारा प्लांट किंगडम इट हैज टू फिनिश. और प्लांट किंगडम बिल्कुल क्लैरिटी से फिनिश करना है, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट आ रहा है. एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू परफॉर्म वेरी वेल इन द टेस्ट. ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए अपनी प्रिपरेशन के ऊपर. अदर देन दैट, मेनी स्टूडेंट्स दे हैव डाउट अबाउट ROP, जिसको बहुत सारे लोग रिप्रेसर ऑफ प्राइमर बोल रहे हैं ना. तो मैम थोड़ा सा वो वाला टॉपिक मैं ले लूँ. ठीक है, डन. मैम यहाँ पे We have another free slide. ओह परफेक्ट. तो बेटा एक टॉपिक मैम ने, मैम अब आई डोंट वांट टू ड्रॉ द होल थिंग बिकॉज अदरवाइज लेट्स टेक दिस स्लाइड ओनली. तो बेटा एक ये रीजन है आपके वेक्टर के पास, PBR322 वेक्टर के पास एक रीजन है ROP, जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है. ठीक है, तो इसे क्या 2 नाम आप इसके लिए यूज कर रहे हो, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, और इसके अलावा मैम एक और नाम इसका यूज होता है जो आपकी NCERT में दिया हुआ है. कोई बच्चा मैम वो वाला नाम बता रहे जो आपके NCERT में भी प्रॉपरली टर्म यूज हुई है इसके लिए, जो मैम थोड़ा सा इजी भी है. तो अच्छा कोई भी नहीं. तो बेटा रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, तो इसके लिए अभी चलो हम टर्म यूज करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड. तो ये एक ऐसी जगह है, बिल्कुल आप रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड लिखो और रिलैक्स हो जाओ. ठीक है बेटा, ये वो जगह है जब भी आपके प्लाज्मिड को कॉपीज बनानी है, तो वो रेप्लिकेशन ओरिजिन कहां पे होगा. इसका जब रेप्लिकेशन होगा, जब इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, तो वो कॉपीज कहां से बननी स्टार्ट होती हैं, ORI साइट से. ORI साइट वो साइट है जहां पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा. और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये जो आपके डबल स्ट्रैंडेड DNA हैं, ये कहां पे सेपरेट होंगे. डबल स्ट्रैंडेड DNA ORI साइट से सेपरेट होगा सबसे पहले, और रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी. ORI साइट क्या कंट्रोल करती है, आप सबको पता है. ORI साइट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर. कितनी कॉपीज बनाई जाएंगी आपके प्लाज्मिड की, 100, 200, 2, 1, कितनी कॉपीज बन रही हैं बेटा. जब भी रेप्लिकेशन होगी, तो रेप्लिकेशन में आपको पता है बहुत सारी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है. अब ये प्लाज्मिड जिसके बारे में हम ये बोलते हैं कि ये DNA के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी रेप्लिकेशन के लिए, इट इज ऑटोनॉमस, ये अपनी रेप्लिकेशन खुद कंट्रोल करता है.
तो इसका मतलब ये अपनी रेप्लिकेशन के लिए अपने एंजाइम्स भी तो खुद बनाएगा, ये रेप्लिकेशन के लिए अपनी प्रोटीन्स भी खुद ही बनाएगा। तो बेटा ये है वो साइट, आरओपी साइट है वो जगह जहां पर रेप्लिकेशन के लिए जो भी प्रोटीन्स चाहिए, रेप्लिकेशन के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए बेटा, ये वो एंजाइम्स और वो प्रोटीन्स यहां से बनते हैं, इस ग्रीन रीजन से, ठीक है। और ये ग्रीन रीजन कट करने वाला आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, ठीक है मैम। अब बच्चों को थोड़ा समझ आया आरओपी का पर्पस क्या है? बेटा प्रोटीन्स बनानी है, एंजाइम्स बनाने हैं जो कि रेप्लिकेशन में काम आएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द पर्पस हियर? क्या ये कलर नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो फिर से लिख दो यहां पे, जो भी प्रोटीन्स चाहिए, जो भी एंजाइम्स चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, बेटा ये रीजन, आरओपी रीजन, वो एंजाइम्स को एनकोड करता है। उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि ये कॉपी नंबर को डिक्रीज करता है। जैसे ओआरआई साइट कंट्रोल करती है कॉपी नंबर कितना होगा, तो ये कॉपी नंबर को डिक्रीज करता है। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा जितनी प्रोटीन और एंजाइम बना पाएगा ये, एक लिमिटिंग नंबर आ जाएगा कि भाई इससे ज्यादा अब मैं कॉपी, चाहे ओआरआई साइट बोल रही है कि भाई 1000 कॉपीज बना दो, बट आरओपी साइट उतनी प्रोटीन नहीं बना पा रही, उतने एंजाइम्स नहीं बना पा रहे कि उतनी रेप्लिकेशन हो पाए। सो इट लिमिट्स द कॉपी नंबर। ये कॉपी नंबर के ऊपर एक अपर लिमिट डिसाइड कर देता है कि उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उससे ज्यादा मैं एंजाइम नहीं बना पा रहा। एनी डाउट? No. Our copy number is determined by ORI site. Copy number is always determined by ORI site. यही आपकी बुक में लिखा है, आप लोग यही याद रखोगे। आपकी आरओपी साइट सिर्फ प्रोटीन्स और एंजाइम्स बना रही है फॉर मल्टीप्लिकेशन और फॉर रेप्लिकेशन ऑफ योर प्लाज्मिड। कॉपी नंबर के ऊपर जो कॉपी नंबर डिटरमिन कर रही है ओआरआई साइट, सपोज ओआरआई साइट बोल रही है कि 1000 कॉपीज बननी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आरओपी से उतनी प्रोटीन्स ना बन पाए कि 1000 कॉपीज बन जाएं। तो कई बार बेटा आरओपी साइट एक अपर लिमिट लगा देती है कि भाई इससे ज्यादा कॉपीज हाथ जोड़ दिए हम नहीं बनवा पाएंगे। तो आरओपी डजंट डिसाइड कॉपी नंबर, rather it decreases the copy number. Copy number is decided by ORI site. Is this clear? Yes, ma'am. Akash Travel पूछ रहे हैं crown कौन, तो I think we'll be discussing this in the next class. Yeah. ठीक है, and now the time starts, almost time starts for plant kingdom. So hustle up, अपनी कॉपी और पेन उठा लो, ठीक है। प्लांट किंगडम का लेक्चर अभी स्टार्ट होने ही वाला है। प्लांट किंगडम में बेटा एक बार फिर से थोड़ा सा स्केड्यूल के बारे में फिर से बात करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है। तो 7 बजे जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल टाइम पे आ जाना। उसमें बात करेंगे कि कौन कौन सी सीरीज चल रही है और किस तरीके से आप लोगों को अपनी पढ़ाई मैनेज करनी है, क्योंकि पढ़ाई आप लोग अच्छे से मैनेज करो, यू हैव टू गिव रिजल्ट। ओके, Keep shining. you're born to shine, of course you'll keep shining guys.